Hello everyone. Today we are going to discuss the second chapter in our NEET Express course, that is biological classification. This is a chapter of class 11th. It is very important from NEET point of view. Biological classification. Biological, bio means living. So we are going to study the living organisms which are classified into groups on the basis of similarities and dissimilarities. So let's start the chapter. This is very important chapter because 3 to 4 minimum number of questions are asked in the NEET exam from this chapter. So let's move on. So we are going to study in this chapter about how do we classify organisms into groups. तो आप ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हो? अब जब हम ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं तो हम उनके बीच में सिमिलैरिटीज देखते हैं कि these organisms are similar, so let's place in this group. This organisms are dissimilar, so let's place in different groups. अब जो ये ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द ऑर्गेनिज्म. जब आपको ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है, there are very large number of organisms in this world. So if you want to study those organisms, it is not possible for you to study each organism individually. तो हमें उन organisms को स्टडी करने के लिए उन्हें ग्रुप्स में क्लासीफाई करना इम्पॉर्टेंट है. जब हम उन्हें ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं तो अब ये क्लासिफिकेशन स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए. सारे साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड शुड अग्री टू दोज ग्रुप्स, तभी हमारा एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आएगा. सो डिफरेंट साइंटिस्ट हैव प्रपोज अ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, देन एलिमिनेटिंग द एरर्स और जो डीमेरिट्स हैं एक सिस्टम की, उसके बाद दूसरे सिस्टम्स आए, देन फॉलोड बाय वी हैव डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ classification of organisms. So today, first of all, we are going to study the different classification systems which are proposed by different scientists, and then we are going to study the most accepted system of classification in detail, followed by the details of the group of classification systems, group of organisms given in the most standardized and most accepted system of classification. So let's start. Biological classification basically makes the study of organisms easy. Organisms here are grouped into categories. Based on similarities and dissimilarities. The first system we are going to study about is the scientific concept given by Aristotle. This was not the classification system, it was the first scientific approach that Aristotle used to classify organisms. So based on the habit, plants को इन्होंने classify किया था कि trees थोड़े बड़े होते हैं, then herbs छोटे होते हैं, shrubs उनसे थोड़े बड़े होते हैं. So it was done on the basis of habit. एनिमल्स में रेड ब्लड सेल्स है या नहीं है, उस बेसिस पे दे क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स. सो एनिमल्स में क्लासिफाइड एनाइमा और इनाइमा. एनाइमा में आरबीसीज एब्सेंट होते हैं और इनाइमा में आरबीसीज वर प्रेजेंट. ओके, सो जिन ऑर्गेनिजम्स में आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स present here, they were placed in enaima, और जिन organisms में red blood cells were absent, they were placed in anaima. Then classification system, two kingdom classification system. इसमें organisms को दो kingdoms में classify किया गया था, Plantae and Animalia, on the basis of certain characteristics. Let's study about it. The system was proposed by Linnaeus. इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स में क्लासीफाई किया था, प्लांटे एंड एनिमलिया. प्लांटे वाज द फर्स्ट किंगडम एंड एनिमलिया वाज द सेकंड किंगडम. अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया था प्लांटे में, और अगर एब्सेंट है तो एनिमलिया में. अगर ऑर्गेनिज्म मूव कर सकता है तो इट वाज प्लेस्ड इन एनिमलिया, और अगर ऑर्गेनिज्म स्टेशनरी अपनी प्लेस से मूव नहीं कर सकता
तो इट वॉज प्लेस्ड इन प्लांटे। अगर ऑर्गेनिज्म बाहर के एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है बट स्लो रिस्पॉन्ड करता है तो इट वॉज प्लेस्ड इन प्लांटे, और अगर फास्ट रिस्पॉन्ड करता है तो इट वॉज प्लेस्ड इन एनिमलिया। कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, अगर ऑर्गेनिज्म में प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इट कैन एक्सक्रीट आउट थिंग्स प्रॉपरली, सो इट वॉज प्लेस्ड इन एनिमलिया, और अगर नहीं है तो इट वॉज प्लेस्ड इन प्लांटे किंगडम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर ऑर्गेनिज्म खुद खाना खा सकता है तो इट वॉज प्लेस्ड इन एनिमलिया, और अगर खाना नहीं खा सकता तो इट वॉज प्लेस्ड इन प्लांटे। तो ऑन दिस बेसिस बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, ये सब प्लांटे में आ गए थे, और प्रोटोजोआ, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स एनिमलिया में आ गए थे। डीमेरिट है, यहाँ पे यूनिसेलर, मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स एक साथ हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एक साथ हैं, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एक साथ हैं। तो इन डीमेरिट्स को कम्बैट करने के लिए, इनको ठीक करने के लिए another system was proposed, which was three kingdom system of classification, and it was proposed by Ernst Haeckel. तो प्लांटे और एनिमलिया तो ऑलरेडी किंगडम्स थे, थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा was proposed by Ernst Haeckel. In this kingdom यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो ज़्यादातर एक्वेटिक ही थे, they were placed in Protista. So unicellular fungi, protozoa, unicellular algae and slime molds were separated from this group and they were placed in Protista. Okay. But अभी भी हमारे photosynthetic और non-photosynthetic organisms separate out नहीं हुए थे. Unicellular और multicellular organisms अभी भी separate out नहीं हुए थे because bacteria were still in plant kingdom along with the other eukaryotic organisms. So another system was proposed which was four kingdom system of classification. The system was proposed by Copeland. उन्होंने पहले से प्लांटे, एनिमलिया और प्रोटिस्टा किंगडम्स तो थे, तो फोर्थ किंगडम विच वॉज प्रपोज वॉज मोनेरा. मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को डाला था. So bacteria or blue-green algae were now separated and placed in Monera. But still there was a problem. Fungi was still, multicellular fungi was still in Plantae with the photosynthetic organisms. Fungi non-photosynthetic hai, and it was there with the photosynthetic organisms placed in plant kingdom. So अब इस correction को करने के लिए, इस demerit को ठीक करने के लिए another system of classification was proposed, that was five kingdom system of classification, and that is proposed by R.H. Whittaker. तो R.H. Whittaker ने प्लांटे, एनिमलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा के अलावा एक न्यू किंगडम प्रपोज किया था, that was fungi. On the basis of this five kingdoms were proposed. The criteria were cell structure कैसा होता है, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, सेलुलर है, ऑर्गन सिस्टम है, टिश्यू सिस्टम है, किस तरह का है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक है, रिप्रोडक्शन कैसा है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, फाइलोजेनेटिक एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप को कंसिडर किया गया था इन दिस सिस्टम ऑफ classification. So this was a most widely used system of classification, and in this chapter we are going to study organism based on this system of classification. So this is the table which is from the NCERT. Monera is prokaryotic, rest all the kingdoms, Protista, fungi, Plantae and Animalia are eukaryotic. सेल वॉल की बात करते हैं तो मोनेरन्स के अंदर इट इज़ नॉन सेलुलोजिक, पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है, पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड से बनी होती है. प्रोटिस्टा के अंदर कुछ मेंबर्स में सेल वॉल होती है, फंजाई में कुछ मेंबर्स में काइटिन की सेल वॉल्स होती है, एंड इन सम इट इज़ ऑफ सेलुलोज. ओमाइसिटीज के मेंबर्स में सेलुलोज की सेल वॉल होती है, प्लांट्स में सेलुलोज की सेल वॉल होती है, एनिमलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है.
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है मोनोरन्स, तो यहाँ पे एब्सेंट होगी। बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मोनेरा और प्रोटिस्ट। मोनोरन्स एंड प्रोटिस्ट आर यूनिसेलुलर, so body organization is cellular. Fungi is multicellular, loose tissue. Plantae is tissue organ level. Animalia is tissue organ or organ system level. Mode of nutrition, autotrophic हो सकते हैं। अब ये केमिकल कंपाउंड से एनर्जी लेके खाना बना सकते हैं या फिर सन से एनर्जी लेके खाना बना सकते हैं। सो दे कैन बी कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। हेटरोट्रॉफिक हो सकते हैं, मतलब सेप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक। प्रोटिस्ट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक हो सकते हैं। Then heterotrophic means they cannot synthesize their own food and they are dependent on other organisms for their food needs. Fungi जो है वो heterotrophic होते हैं, वो dead organism से food ले सकते हैं, अपना energy ले सकते हैं, तो they are saprotrophic हो सकते हैं, saprophytic हो सकते हैं, या फिर parasitic living organism से भी food ले सकते हैं। Autotrophic होते हैं plants, खुद का खाना खुद बनाते हैं और energy लेते हैं sun से, तो they are photosynthetic। एनिमलिया हेटरोट्रॉफिक होते हैं, खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं। होलोजोइक हो सकते हैं या सैप्रोफिटिक हो सकते हैं। होलोजोइक इज इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक इज दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म। मोनेरा में जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम मोनेरन्स बोलते हैं। इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं। बैक्टीरिया सोल मेंबर्स हैं इस किंगडम के। They are the sole members or main members of this kingdom. यूबिक्विटस इन नेचर होते हैं, हर जगह मिलेंगे आपको, चाहे वो डेजर्ट हो, डीप सी ओशन में भी मिल जाएंगे, एनिमल्स के अंदर भी मिल जाएंगे, प्लांट्स के अंदर भी मिल जाएंगे, एनिमल्स और प्लांट की बॉडी के ऊपर भी मिल जाएंगे, स्नो में मिल सकते हैं, तो दे आर फाउंड एवरीवेयर। मोस्टली दे आर हेटरोट्रॉफिक, दे आर ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, बट मोस्टली दे synthesize they cannot synthesize their own food and they take food from the other organisms. Bacteria are most ancient, most abundant microorganisms. Okay. On the basis of the shapes, bacteria are of 4 types. अगर spherical है तो उन्हें हम coccus बोलते हैं, plural is cocci. अगर rod shape है, so we call it as bacillus, plural is bacilli. अगर comma shaped है, so plural is vibrium and it is known as vibrium and plural is vibrio. If it is spiral shaped, they are known as spirillum and plural is spirilla. Okay. Now we are going to study about kingdom Monera in detail. Kingdom Monera includes Archaebacteria, Cyanobacteria and Mycoplasma. Archaebacteria are bacteria which are living in the extreme conditions. उनके पास कुछ उनकी cell wall और cell membrane की composition में difference होता है, because of which they can tolerate the extreme conditions. Then we are going to study about Cyanobacteria. They are the primitive organism जो photosynthetic हैं, खुद का खाना खुद बनाएंगे. And then we are going to study about Mycoplasma. इन organisms के पास सेल वॉल नहीं होती, इन्हें हम जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, बिकॉज माइकोप्लाज्मा वर अर्लियर प्लेस इन प्लांट किंगडम एंड दे कैन चेंज देयर शेप, तो दैट इज वाई दे आर प्लियोमॉर्फिक और जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम. मूविंग अहेड, एंड फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आर्कियोबैक्टीरिया. Archaebacteria differ from normal bacteria in their cell wall and cell membrane composition. They have cell wall composed of pseudomurine. Normally, normal bacteria के पास cell wall पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, जिसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं, और आर्कियोबैक्टीरिया में फॉल्स म्यूरिन, स्यूडोम्यूरिन की सेल वॉल होती है. सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे मोनोलेयर है विद ब्रांच लिपिड्स, सिंगल लेयर की सेल वॉल होती है. नॉर्मल बैक्टीरिया में डबल लेयर की सेल वॉल होती है, और उसमें
यहाँ पर जो आर्के बैक्टीरिया है, इनमें जो लिपिड्स की सेल वॉल होती है उसमें लिपिड्स ब्रांच्ड होते हैं. बिकॉज ऑफ विच दीज कंडीशंस, ये आर्के बैक्टीरिया कैन टॉलरेट द एक्सट्रीम हैबिटेट. दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट. मूविंग अहेड, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ आर्के बैक्टीरिया. मिथेनोजेंस आपको रुमिनेंट्स में मिलते हैं. ये आपकी गट्स ऑफ रुमिनेंट्स में मिलेंगे, जैसे कि काउ, बफलोज, कैटल्स में मिलते हैं. ये कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं. केमिकल कंपाउंड्स से एनर्जी लेते हैं और खुद का खाना खुद बनाते हैं. दे प्रोड्यूस बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रुमिनेंट्स. दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मिक एसिड इनटू मीथेन. एग्जाम्पल है मिथानोकोकस, मिथानोबैक्टीरियम. ये ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं. इनको complete absence of oxygen चाहिए for their survival. They are mostly found in the marshy habitat and guts of ruminant. Moving ahead, halophiles. Halo means salt, philes means loving. So these are the archaebacteria which loves salty conditions. They are heterotrophs. Halobacterium and Halococcus are their examples. Facultative anaerobes होते हैं, temporary anaerobes. So generally they are aerobic, but अगर anaerobic condition मिलती है उन्हें तो they can survive in anaerobic condition as well. In the absence of oxygen they can survive. They are found in saline environment like sea brines, oceans. यहाँ पर आपको मिलते हैं. Halobacterium and Halococcus are their examples. Moving ahead, thermoacidophiles. They are chemoautotrophs. ये खुद का खाना खुद बनाते हैं, but they use the chemical energy from the other compounds. They use the energy from the chemical compounds and then they synthesize their own food. They are facultative anaerobes, temporary anaerobes हैं. Generally they are aerobic. Oxygen की presence में they respire, survive in the presence of oxygen. But अगर oxygen नहीं है तो they will not die. They will adapt to a mechanism which is applicable to the absence of oxygen. So they can adapt to anaerobic environment as well. They are found in the extreme hot and acidic conditions, जैसे कि hydrothermal vents, sulfur springs. Example of thermoacidophiles, high temperature acidic conditions loving bacteria are Thermoplasma and Thermoproteus. So we have discussed about archaebacteria. Now we are going to discuss about cyanobacteria and mycoplasma. Starting with cyanobacteria. Cyanobacteria को हम blue green algae भी बोलते हैं, BGA. They are gram negative bacteria. इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है. बट हम इन्हें ग्राम नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनकी सेल वॉल के अराउंड म्यूसिलेजिनस शीट होती है. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास एक स्टेन, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है. पेप्टाइडोग्लाइकन ग्राम स्टेन लेकर वॉयलेट स्टेन दे देता है, तो उनकी जो सेल वॉल होती है वो वॉयलेट कलर की अपेयर हो जाती है. तो जब आप बैक्टीरिया को ग्राम स्टेन देते हो, अगर उसके पास पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है तो वो सेल वॉल वॉयलेट स्टेन ले लेती है, इसलिए हम उन बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वॉयलेट स्टेन नहीं लेते हैं. इट इज़ बिकॉज ईदर कि उनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी है, या फिर उनकी सेल वॉल के अराउंड कोई और शीट है जिसकी वजह से स्टेन पहुंच नहीं पा रहा सेल वॉल के पास. तो इस केस में, साइनोबैक्टीरिया के केस में, cell wall is composed of peptidoglycan, but because it is surrounded by mucilaginous sheath, the gram stain does not reaches the cell wall, and due to which it is called as gram negative bacteria. ये photosynthetic है, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. सेल वॉल इज सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ. यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं. इनमें फ्लैजिला थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल एब्सेंट होता है. माइकोप्लाज्मा सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल नहीं है. दे कैन चेंज देयर शेप,
That is why they are called as pleomorphic. Pleo means many. Morphic is morphology, external appearance. ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं. दे कैन कॉज डिजीज टू प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ये डिजीज कॉज कर सकते हैं. So we are done with the kingdom Monera. Now we are going to move on to the next kingdom, Protista. Protista जो kingdom है इसमें unicellular eukaryotic organisms होते हैं. ज़्यादातर organisms aquatic होते हैं. ये जो kingdom है इसकी जो boundaries है बहुत well defined नहीं है. इसमें कई बार कुछ mixing भी है, तो आप क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हो कि इनमें जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि क्लामाडोमोनास, पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, सबको एक साथ डाल दिया है, तो थोड़ा सा ना मिक्सिंग है, थोड़ा सा खिचड़ी सी बन गई है. द टर्म प्रोटिस्टा वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्नस्ट हेकल इन 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. यहाँ जो मेंबर्स हैं वो प्राइमरीली एक्वेटिक हैं, यूनिसेलर हैं और यूकैरियोटिक हैं. इनके मेंबर्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है बिकॉज ये यूकैरियोटिक हैं. membrane bound organelles है because they are eukaryotic. 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स यहाँ पर साइटोप्लाज्म में मिलते हैं और 70s माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं. यहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है which helps in the cell division. Boundary of this kingdom Protista is not well defined. यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कुछ फीचर्स प्रोकैरियोट से मिलते हुए होते हैं, कुछ फीचर्स यूकैरियोट से मिलते हुए होते हैं. That is why it is called as connecting link between prokaryotes and higher eukaryotes. Moving ahead. Protista में we have chrysophytes, we have euglenoids, we have dinoflagellates, we have slime molds, we have protozoans. Chrysophytes, euglenoids और dinoflagellates photosynthetic protist हैं. Slime molds आपके saprophytic protist है. We are going to discuss about them, each one of them in detail. Starting with photosynthetic protist, सबसे पहले हम chrysophytes के बारे में बात करेंगे. Chrysophytes में diatoms आते हैं और desmids आते हैं. Desmids को हम golden algae भी बोलते हैं. Diatoms are mostly aquatic, photosynthetic होते हैं. इनकी जो cell wall होती है it is silicified. सिलिका एम्बेडेड होता है इनकी सेल वॉल में और कुछ पैटर्न सा बनाता है. सेलुलोजिक सेल वॉल विद सिलिका एम्बेडेड इन इट स्ट्रॉन्ग होती है और इनडिस्ट्रक्टेबल होती है. तो जब भी डायटम की डेथ होती है तो नीचे सेल वॉल डिपोजिशन हो जाती है और एक लेयर सी बन जाती है डायटम्स की, जिसको हम डायटमेशियस अर्थ भी बोलते हैं. डायटम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फाइटोप्लैंक्टन्स. इनमें लाइट वेट लिपिड्स होते हैं because of which they float on the water. Then we have euglenoids. They are also photosynthetic protists. Unicellular है, eukaryotic होते हैं. Majority of them are found in fresh water, जो रुका हुआ पानी है. Stagnant water है, flowing water में नहीं मिलते, stagnant water में मिलते हैं. They are connecting link between plants and animals. इनमें कुछ features plants के हैं, कुछ features animals के हैं. जब लाइट प्रेजेंट होती है तो दे आर फोटोसिंथेटिक और जब लाइट एब्सेंट होती है तो दे आर हेटरोट्रॉफिक. सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है. इनके आसपास एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकॉन. इनमें मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है. अगर लाइट प्रेजेंट है तो दे आर ऑटोट्रॉफिक, अगर लाइट एब्सेंट है तो दे आर हेटरोट्रॉफिक. मूविंग अहेड. Dinoflagellates are also photosynthetic protists. Dinoflagellates में यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं. इनका जो न्यूक्लियस है इट इज़ मेसोकैरियन, मतलब इसमें कुछ फीचर्स प्रोकैरियोट्स के हैं और कुछ फीचर्स यूकैरियोट्स के हैं. मोस्टली मरीन होते हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं. इनमें 2 ग्रूव्स होते हैं. ग्रूव्स ऐसे टर्न्स होते हैं. वर्टिकल ग्रूव भी होगा और हॉरिजॉन्टल ग्रूव भी होगा. मैं अभी अब डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगी. सो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, मतलब इस तरह से. ये ट्रांसवर्स ग्रूव है, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है.
ठीक है। दे हैव टू फ्लैजिला, एक आपका ट्रांसवर्स ग्रूव से निकल रहा होता है, एक आपका लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से निकल रहा होता है। रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होता है और ऑयल होता है। जो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल होता है वो कार्बोहाइड्रेट और ऑयल की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सो यहाँ पे आपका देखो, ये आपकी सेलुलोजिक प्लेट्स है जिसको हम थीका या लॉरिका बोलते हैं। ये ट्रांसवर्स ग्रूव है, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से स्मूथ फ्लैजिला निकलता है, ट्रांसवर्स ग्रूव से रिबन लाइक फ्लैजिला निकलता है, ऐसे, ठीक है। दिस इज अ डाइनोफ्लैजिलेट। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्लाइम मोल्ड्स। ये भी यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, बट ये न्यूट्रिशन अपना डेड ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं, तो इन्हें हम सेप्रोबिक प्रोटिस्ट भी बोलते हैं, या फिर हम इन्हें प्रोटिस्टियन फंजाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि फंजाई भी अपना न्यूट्रिशन डेड ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं। सो दे आर प्रोटिस्ट एंड शोइंग फंजाई लाइक फीचर, सो प्रोटिस्टियन फंजाई। दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। इनमें कुछ फीचर्स प्लांट्स के हैं, जैसे कि इनके जो स्पोर्स होते हैं उनके आसपास ट्रू सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, जैसे कि प्लांट्स में होती है। कुछ फीचर्स एनिमल्स के होते हैं, दे लैक सेल वॉल और दे आर हेट्रोट्रॉपिक। जो इनकी बॉडी होती है उसके आसपास सेल वॉल नहीं होते एंड इट इज़ हेट्रोट्रॉपिक, सो दे आर द फीचर लाइक एनिमल्स। फंजाई लाइक फीचर है इनमें, जैसे कि एनिमल्स, फंजाई में फ्रूटिंग बॉडीज produces spores. Similarly, these slime molds also have fruiting bodies which produces spores. They lack chlorophyll and they can reproduce sexually and asexually in both the ways. They are usually free living and often creeping over the debris. फ्री लिविंग है और अगर ये डेब्रिस है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, तो उस पर क्रीप करते हैं, इस तरह से मूव करते हैं, ठीक है। डेब्रिस कैन बी फॉलन लीव्स, रॉटिंग लॉग्स ऑफ वुड, पड़े हुए हैं उसके ऊपर देख फ्री। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन अच्छे हैं, इनके लिए फेवरेबल हैं, तो ये एग्रीगेट कर जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, एंड दिस एग्रीगेशन इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम, which can grow and spread over meters, meters तक बड़ा बड़ा बन जाते हैं बहुत। और अगर कंडीशंस अनफेवरेबल हैं तो प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं एंड उन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ is the last type of protist which we are going to discuss. Proto means primitive and zoa is animal life. तो दे आर प्रिमिटिव और फर्स्ट एनिमल्स, यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, सारे मेंबर्स यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये खाना बनवाते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। सो दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, प्रोटोजोआ। ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर अगर फॉल्स फीट है या स्यूडोपोडिया है तो उन्हें हम बोलते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। अगर फ्लैजिला है तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, अगर सीलिया है तो सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, और अगर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर मूवमेंट में हेल्प करता है और वो एब्सेंट है, दे आर कॉल्ड एज स्पोरोजोअन्स। हैबिटेट की बात करते हैं तो अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स एक्वेटिक हैबिटेट में मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर या मरीन या डैम्प सॉइल में भी मिल सकते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट में मिल सकते हैं। सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं और स्पोरोजोअन्स एंडोपैरासाइट्स होते हैं, मतलब ये ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं, दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। अमीबॉइड प्रोटोजोअन के अंदर स्पेशल फीचर क्या है कि उनकी मरीन फॉर्म्स के आसपास सिलिका का शेल होता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स में कैविटी होती है जिसको हम गलेट भी बोल सकते हैं, जिसके थ्रू वो आउटसाइड से फूड लेते हैं। और स्पोरोजोअन्स इन्फेक्शियस स्पोर प्रोड्यूस करते हैं जो इन्फेक्शंस लाइक मलेरिया कॉज कर सकते हैं, और वो इन्फेक्शियस स्पोर उनकी लाइफ साइकिल में प्रोड्यूस हो रहा होता है।
Amoeboid protozoan का example है Entamoeba histolytica, which can cause dysentery. Flagellated protozoan का example है Trypanosoma. It can cause sleeping sickness. Paramecium is the example of ciliated protozoan, and sporozoans का example है Plasmodium, which causes malaria. This Plasmodium is different from the slime molds Plasmodium. Slime molds Plasmodium aggregation था slime molds का during favorable condition, and this is a scientific name of the sporozoan protozoan which causes malaria. Note this down. Next kingdom we are going to study is fungi. Fungi, we all know it was a kingdom which was proposed by R.H. Whittaker. In this kingdom, he separated the organisms on the basis of mode of nutrition. Fungi में जितने भी members होते हैं वो heterotrophic होते हैं, वो saprophytic या parasitic होते हैं. वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे organism से food लेते हैं. और वो food ज़्यादातर dead organism से लेते हैं. वो disease causing भी होते हैं, ये disease cause कर सकते हैं fungi, so they are parasitic. Study of fungi is called as mycology. Fungi में बहुत diversity होती है, बहुत variety होती है in terms of morphology and habitat. बहुत तरह तरह के habitat में आपको मिल जाएंगे, बहुत different types of habitat में आपको fungi देखने को मिलते हैं. और morphology भी अलग है. Unicellular fungi भी हो सकता है, single cell का fungi जैसे कि yeast. Multicellular भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, आपको naked eye से दिखेगा. Mushroom. थ्रेड लाइक अपीयरेंस फिलामेंटस हो सकता है जैसे कि राइजोपस. इनकी जो बॉडी होती है फंजाई की वेजिटेटिव बॉडी वो हैप्लॉइड होती है. जो इनकी बॉडी होती है उसको हम थैलस बोलते हैं और उस थैलस को हाइफे भी बोलते हैं. दिस इज थैलस. अब ये थैलस एसेप्टेट भी हो सकती है, मेनी न्यूक्लियस इन द सेम साइटोप्लाज्म, या उसमें पार्टीशन भी हो सकता है, सेप्टेट भी हो सकती है. दिस इज थैलस. ग्रुप ऑफ हाइफे, ग्रुप ऑफ, ये आपका हाइफे या थैलस बोल सकते हैं इसे आप. ग्रुप ऑफ हाइफे ग्रुप ऑफ हाइफे को हम बोलते हैं माइसीलियम. ओके. जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई. फंजाई यूकैरियोटिक है, सो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड होगी, न्यूक्लियस जो होगा वो मेम्ब्रेन बाउंड होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलेंगे, ATS टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म, ATS टाइप ऑफ राइबोसोम्स मिलेगा इन द साइटोप्लाज्म. 70S टाइप ऑफ राइबोसोम मिलेगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में. Because fungi are heterotrophic, so chloroplasts are absent. So they are eukaryotic, membrane-bound nucleus and organelles are present. ATS cytoplasmic ribosomes are present. 70S type of ribosomes in mitochondria. Chlorophyll नहीं होता, achlorophyllous होते हैं. Mode of nutrition saprobic या parasitic होगा, जिसको हम heterotrophic mode of nutrition भी बोलते हैं. सेल वॉल फंजाई की काइटिन से बनी होती है, कुछ फंजाई में सेलुलोज से बनी होती है. राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन फंजाई. नोट दिस डाउन. So now we are going to study about different classes of fungi. So classification of fungi was done on the basis of morphology of mycelium. माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी क्या है? सेप्टेट है, एसेप्टेट है. मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे हैं, सेक्सुअल स्पोर्स कैसे बने हैं. फ्रूटिंग बॉडीज. ऑन दिस बेसिस वी हैव फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लासेस ऑफ फंजाई. Phycomycetes is further classified into two subgroups, oomycetes and zygomycetes. So we are going to study in detail about oomycetes, zygomycetes, ascomycetes, basidiomycetes and
Deuteromycetes. Starting with Oomycetes. Oomycetes fungi. अब हम जितने भी फंजाई पढ़ेंगे उनका कॉमन नेम पढ़ेंगे, फिर वो कहाँ मिलते हैं, हैबिटेट, उनकी सेल वॉल किस तरह की है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उनमें माइसीलियम कैसा है, एसेप्टेट है, सेप्टेट है, यूनिन्यूक्लिएट है, मल्टीन्यूक्लिएट है, ये पढ़ेंगे. देन एसेक्सुअल स्पोर क्या है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, एसेक्सुअल स्पोर क्या है, और सेक्सुअल स्पोर कैसा है. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज. तो ओमाइसिटीज में कॉमन नेम जो है उसका एल्गल फंजाई है, बिकॉज ये वाटर में मिलता है, एक्वेटिक कंडीशंस में मिलता है, और इसकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है, तो ये एल्गी को रिजेंबल करता है थोड़ा थोड़ा, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एल्गल फंजाई. ये एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं, जैसे कि एल्गी मिलती है. सेल वॉल सेलुलोज और ग्लाइकन्स की बनी होती है. माइसीलियम यहाँ पे पार्टीशन नहीं होता, एसेप्टेट होती है, नो सेप्टा इज प्रेजेंट. सो सिंगल साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, सो इट इज़ मल्टी न्यूक्लियड. Many nucleus, when there are many nucleus in the single cytoplasm, same cytoplasm, तो condition क्या होती है, सिनोसिटिक condition. Asexual spores को हम zoospores बोलते हैं and sexual spores को हम oospores बोलते हैं. ठीक है, oospore यहाँ पर डिप्लॉयड होता है and zoospore is haploid. वो zoosporangia के अंदर बनता है, मोटाइल होता है, एंडोजिनस है क्योंकि ज़ूस्पोरेंजिया में बनता है, उसमें फ्लैजिला होते हैं बिकॉज इट इज मोटाइल. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ओमाइसिटीज में वी हैव फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस विच इज द मेंबर ऑफ ओमाइसिटीज. ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है. आयरिश पोटैटो फमाइन इज बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म. अल्ब्यूगा कैंडिडा वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स कॉज करता है. ये ब्रेसिकेसी फैमिली में के लिए कह सकते हो आप हार्मफुल है. पाइथियम इज कॉजेज द डंपिंग ऑफ डिजीज इन टोमेटो, चिलिंग एंड मस्टर्ड. तो टोमेटो, चिली और मस्टर्ड में अगर पाइथियम इन्फेक्ट करता है तो उनकी लीव्स फॉल हो जाती है, सूख के गिर जाती हैं, तो इट कॉजेज डंपिंग ऑफ डिजीज इन दीज ऑर्गेनिजम्स. Next group of fungi we are going to study is Zygomycetes. Zygomycetes का common name conjugation fungi है. ये terrestrial habitat, land पे ज़्यादातर देखने को मिलती है. इसकी जो cell wall होती है वो chitin और other polysaccharides से बनी होती है. Mycelium aseptate होगी जैसे कि Oomycetes में थी. No septa is present. बहुत सारे nucleus same cytoplasm में present है. So this is सिनोसिटिक कंडीशन और मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन. अनब्रांच्ड होती है इसकी माइसीलियम. एसेक्सुअल स्पोर को हम स्पोरेंजियोस्पोर बोलते हैं, जो स्पोरेंजिया के अंदर बनती है. एंडोजिनस स्पोर्स हैं, ठीक है, नॉन मोटाइल होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट है, सिंगल सेल्ड है. सेक्सुअल स्पोर डिप्लॉयड है, जाइगोस्पोर उसे हम बोलते हैं. एग्जाम्पल्स इसके क्या है, राइजोप्लस स्टोलेनिफर एंड म्यूकर. राइजोप्लस को हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं. अगर आप ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाए, कुछ टाइम तक ऐसे ही रखे जाए, तो आपको उसके ऊपर फंगल ग्रोथ दिखेगी, तो वो फंगस जो है वो है राइजोप्लस स्टोलेनिफर. ठीक है. म्यूकर कॉजेज द इन्फेक्शन इन ह्यूमन बींग्स. म्यूकर एक एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, रेमाइसिन, और ये बहुत सारे हमारे फूड प्रोडक्ट्स के लिए पॉइजनस है. ठीक है. नेक्स्ट ग्रुप ऑफ फंजाई वी आर गोइंग टू स्टडी इज एस्कोमाइसिटीज. एस्कोमाइसिटीज का कॉमन नेम है सैक फंजाई, क्योंकि जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी है वो बलून लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है. ये भी हमें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मिलती है, लैंड पर मिलती है. सेल वॉल इसकी काइटिन और अदर पॉलीसैकेराइड से बनी है. माइसीलियम यहाँ पर यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकती है, बाइन्यूक्लिएट भी हो सकती है, और ब्रांच होती है. माइसीलियम ब्रांच होती है. सेप्टा प्रेजेंट होता है, तो यूनिन्यूक्लिएट हो सकती है. इनमें एक स्टेज आता है
जब दो न्यूक्लियस मेल और फीमेल जब गेमीट जो लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जब फ्यूज करते हैं तो एक स्टेज आता है कि सेम साइटोप्लाज्म में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं डाइकैरियोफेज। तो तब उस स्टेज में ये बाइन्यूक्लिएट होते हैं। तो माइसीलियम यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकती है, बाइन्यूक्लिएट भी हो सकती है। बाइन्यूक्लिएट डाइकैरियोफेज में होता है। ये फेज बहुत छोटा होता है एस्कोमाइसिटीज मेंबर्स में। और इसके बाद अभी हम जब बेसिडियोमाइसिटीज की बात करेंगे उसमें डाइकैरियोफेज थोड़ा लंबा होता है। एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पर कोनिडिया होता है। कोनिडिया इज द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई। एक्सोजीनस होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, थिन बॉल्ड होता है और बाहर बनता है, मतलब जो स्टॉक होती है उसी कोनिडियोफोर के ऊपर बनता है। ठीक है। सेक्सुअल स्पोर यहाँ पे एस्कोस्पोर होता है और ये हैप्लॉइड होता है। एग्जाम्पल्स, Morels and truffles are edible members of Ascomycetes। उनके एस्कोकार्प्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं। फ्रूटिंग बॉडी होती है एस्कोकार्प। न्यूरोस्पोरा क्रासा, ये हमारी बहुत ही एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल और जेनेटिक स्टडीज़ में यूज़ होता है। जैसे कि ड्रोसोफिला, तो इसे हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। इट इज़ अ पिंक कलर ब्रेड मोल्ड। पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, पेनिसिलियम कमर्शियली हमें जो मिलता है वो इस मेंबर से मिलता है। इट प्रोड्यूसेस एन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलियम नोटेटम में पेनिसिलिन फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड हुआ था। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ यीस्ट। ये बेकिंग और ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, इसलिए हम इसे बेकर्स या ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं। और ये एनारोबिक कंडीशन में अल्कोहल बनाने के काम आता है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट मेक्स अल्कोहल, फर्मेंटेशन करता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। Next class of fungi we are going to study is Basidiomycetes. कॉमन नेम इसका क्लब फंजाई है। ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में देखने को मिलता है। सेल वॉल काइटिन से बनी हुई या अदर पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। माइसीलियम यहाँ पे सेप्टेट होता है और सेप्टेट में यूनि, अगर ये आपका देखो दिस इज सेप्टेट एंड यूनिन्यूक्लिएट। It can be septate and binucleate. Binucleate क्यों है? Binucleate is because of dikaryophase. और यहाँ पर dikaryophase is long lived, prolonged होता है। Basidiomycetes में लंबा होता है dikaryophase. Asexual spore यहाँ पे absent होता है। Sexual spore is Basidiospore which is haploid. Importance of Basidiomycetes. Agaricus bisporus is a good source of proteins and minerals. It is a mushroom. Armillaria melia is also called as honey mushroom. It is the largest fungi. Amanita phalloides आपका poison produce करता है which is toxin. That's alpha amanitin produce करता है. It is a toxic compound and इसलिए इसको हम death cup भी बोलते हैं. The last group of fungi is Deuteromycetes. इस फंजाई में जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो डिस्कवर नहीं हुआ है। जब भी इस फंजाई की मेंबर का रिप्रोडक्टिव फेज डिस्कवर हो जाता है तो उसको रीनेम करके हम इधर एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में प्लेस कर देते हैं। तो इस फंजाई को हम फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं जिसमें रिप्रोडक्टिव फेज इज येट नॉट डिस्कवर्ड। इसका हैबिटेट टेरेस्ट्रियल होता है। सेल वॉल काइटिन और अदर पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। माइसीलियम सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है और यूनिन्यूक्लिएट होता है। एसेक्सुअल स्पोर इज कोनिडिया। सेक्सुअल स्पोर यहाँ डिस्कवर्ड नहीं होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ Deuteromycetes, Alternaria solanae अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। तो पोटैटो के ऊपर
ब्राउन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बन जाती हैं. ठीक है. कोलेटोट्राइकम फाल्केटम रेड रॉट ऑफ शुगर केन कॉज करता है. शुगर केन में कुछ इस तरह की रेड लाइंस कॉज करता है. इट इज रेड रॉट ऑफ शुगर केन. ठीक है. And trichophyton, it causes dandruff. Okay. Dandruff is not only caused by this particular fungus, उसके multiple reasons हो सकते हैं, but this particular fungus is also responsible for causing dandruff. Moving ahead, next we are going to study about viruses. Viruses are not an organism because they are not a complete cell. उनमें सेल नहीं है, दे आर ए सेलुलर एंटिटीज़. और हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में भी पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कंसिडर करने के लिए उसके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, चाहे सिंगल सेल हो चाहे मल्टी सेल हो, बट सिंगल सेल होना ज़रूरी है. वायरसेस के पास सिंगल सेल भी नहीं है, सो दे आर ए सेलुलर एंटिटी. बट वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं होस्ट के अंदर एंटर करके, होस्ट की मशीनरी यूज़ करके. तो उनके पास कुछ फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं और कुछ फीचर्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं. सो दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ओके. Viruses have been derived from a Latin word venom, which means poison. R.H. Whittaker ने वायरस को अपनी क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लेस नहीं किया था बिकॉज इट इज़ नॉट अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. उसमें कुछ फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं और कुछ फीचर्स नॉन लिविंग थिंग के हैं. Viruses are obligate intracellular parasites. They live outside the host. They are inactive. Outside the host body and they are active and multiply inside the body of the host using host machinery. That is why they are obligate. Obligate मतलब mandatory. Intracellular, inside the cell. Parasite takes nutrition from the host, from living host. Is it clear? The definition of viruses? Now, वायरस के अंदर कुछ essential components होते हैं जैसे कि genetic material. I'll just first of all write down the components. Of virus. It is genetic material. Which can be either DNA or RNA, but never both. They have protein code which protects the genetic material. ठीक है. सब वायरल एजेंट्स जो होते हैं वो वायरस से छोटे होते हैं.
वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, दे कैन पास थ्रू दी बैक्टीरियल फिल्टर्स, और सब वायरल एजेंट्स वायरसेस से भी छोटे होते हैं, इनमें कोई ना कोई एसेंशियल कंपोनेंट एब्सेंट होता है. So we have three types of subviral agents: viroids, virusoids, and prions. These are smaller than viruses and lack one of the essential component. First of all, we are going to study about viroids. Viroids are the smallest self-replicating particle. सबसे छोटे सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल हैं, वो सबसे छोटे हैं और खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं. They were discovered by Theo Diner in 1971. इन पार्टिकल्स के अंदर आरएनए इन्फेक्शियस होता है, आरएनए इन्फेक्शन कॉज करता है, और दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटीन कोड, इनके अंदर प्रोटीन कोड नहीं होता. दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, मतलब ये होस्ट मशीनरी के अंदर जाते हैं तभी ये पैरासिटिक होते हैं, होस्ट मशीनरी के अंदर जाके ही ये मल्टीप्लाई करते हैं. तो दे आर मैंडेटरली पैरासाइट, मतलब they takes nutrition only when they enter the host body. Molecular weight of viroid is low. यहाँ पर RNA जो होता है वो टाइटली फोल्डेड होता है, इधर सर्कुलर या लीनियर स्ट्रक्चर में. वायरॉइड्स प्लांट्स को ही डिजीज कॉज करते हैं, एनिमल्स को डिजीज कॉज नहीं करते हैं. ठीक है. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज वन ऑफ द डिजीज विच इज कॉज बाय वायरसेस. इसमें पोटैटोज इस तरह के दिखते हैं आपको. Chrysanthemum shunt and Citrus exocotis are the other diseases which are caused by viruses. So all these are the diseases which are caused in plants. Viroids do not infect animals. अभी तक they have not been discovered. ऐसा कोई वायरॉइड डिस्कवर नहीं हुआ है जो एनिमल्स को डिजीज कॉज करे. Next subviral agent is virusoids. Virusoids was discovered by Randall et al. Randall के साथ कुछ और उनके कलीग्स, कुछ और डिस्कवरर्स थे जिन्होंने वायरोसॉइड्स को डिस्कवर किया था. इट इज़ बेसिकली अ वायरस विद इन अ वायरस, मतलब ये वायरोसॉइड एक बड़े वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है. सो आरएनए वायरसेस, बट ये कैप्सिड लैक करते हैं, और दे आर प्रेजेंट इनसाइड द कैप्सिड ऑफ लार्जर वायरस. तो एक बड़े वायरस के अंदर छोटा सा वायरोसॉइड प्रेजेंट होगा. दे रेप्लिकेट विद इन द होस्ट, होस्ट की मशीनरी के अंदर रेप्लिकेट करते हैं बिकॉज दे आर पैरासिटिक ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एंड दे डू नॉट कॉज एनी इन्फेक्शन. तो अभी तक ऐसा कोई वायरोसॉइड डिस्कवर नहीं हुआ है जो इन्फेक्शन कॉज करे. प्रायॉन्स, प्रायॉन्स क्या होते हैं? ये ब्रेन और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को इन्फेक्ट करता है. ठीक है, नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करता है. दे आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल. इनके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, दे लैक जेनेटिक मटेरियल. नो डीएनए, नो आरएनए. यहाँ पर जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन कॉजेज इन्फेक्शन और डिजीज. ओके, प्रायॉन्स कॉजेज डिजीज लाइक पुरो डिजीज, लाफिंग डेथ डिजीज इन ह्यूमंस. ह्यूमन को अगर डिजीज होता है वो हंसते हंसते ही मर जाता है. Obviously this is not the only symptom, there are a lot of many symptoms as well. Bovine spongiform encephalopathy, बिकॉज ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करता है तो इसमें काउ मैड हो जाती है. स्क्रैपी डिजीज इन शीप एंड क्रूल्सफेल्ड-जैकॉब डिजीज इन ऑल्सो कॉल्ड एज CFZ डिजीज. इट इज कॉज इन ह्यूमन्स. तो इन सारी डिजीजेस में ब्रेन और नर्वस सिस्टम इन्फेक्ट होता है ऑर्गेनिज्म का, और ये एक प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल प्रायॉन इन्फेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को. उसके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता और वो बहुत ही छोटा पार्टिकल है जो वायरस से भी छोटा होता है. इसको हम सब वायरल एजेंट बोलते हैं. So with this we have completed this chapter. Now we are going to deal with few questions.
मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप. प्लांट है ऑटोट्रॉफिक होते हैं, सारे प्लांट्स खुद का खाना खुद बना सकते हैं, तो यहाँ नहीं मिलेगा आपको. फंजाई आपका हेटरोट्रॉफिक होते हैं, सारे फंजाई हेटरोट्रॉफिक है, या तो सेप्रोफिटिक होंगे, सेप्रोट्रॉफिक या पैरासिटिक, तो ये भी नहीं होगा. एनिमल या हेटरोट्रॉफिक होते हैं, खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, तो ये भी नहीं होगा. मोनेरा ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, और आपके फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं. फोटोसिंथेटिक में एनऑक्सीजेनिक भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन रिलीज ना करें, ऑक्सीजनिक भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करें. दे कैन बी हेटरोट्रॉफिक, दे कैन बी सैप्रोफिटिक, दे कैन बी पैरासिटिक. तो बहुत सारी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है. सो मोनेरन्स के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. सो दे आर शो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इन मोनेरन्स. वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, तो वायरॉइड्स के पास प्रोटीन कोट नहीं होता एंड आरएनए होता है. डीएनए मॉलिक्यूल्स नहीं होते ये विथ प्रोटीन कोड, डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड होता है, बट डीएनए नहीं होता. दे आर आरएनए मॉलिक्यूल्स. आरएनए मॉलिक्यूल्स विथ प्रोटीन कोड नहीं होते, एब्सेंट होता है. आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. Which of the following are found in extreme saline conditions? Archaebacteria, may you have halophiles. Halo means salt and phile means loving. Example, Halobacterium, Halococcus, Eubacteria are true bacteria. They are not found in extreme condition. Cyanobacteria are blue green algae, photosynthetic है, extreme conditions में भी नहीं मिलेंगे. Mycoplasma are smallest bacteria. ये भी आपको extreme conditions में नहीं मिलते हैं. Not found in extreme conditions. Next question, select the wrong statement. The walls of diatoms are easily destructible. No. Walls of diatoms में they are embedded with silica because of which they are indestructible. This is wrong. तो यही आपका करेक्ट आंसर है. आपको रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है. ये जो डायाटम्स की जब डेथ होती है तो वो डायटमेशियस अर्थ बना देते हैं, विच इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल्स ऑफ द डायाटम्स. डायाटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशन के, और ये माइक्रोस्कोपिक है और ये पैसिवली फ्लोट करते हैं ओशन में बिकॉज इनके पास लाइट वेट लिपिड्स होता है. तो ये सारी स्टेटमेंट्स ठीक हैं. आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1. Next question is, chrysophytes, euglenoids, dinoflagellates and slime molds are included in the kingdom. Very easy question. They are not included in Animalia. Monera. Monera is bacteria. Soul members.
All these are unicellular eukaryotic organism, primarily aquatic, so they are placed in protista. So answer to this question is option number 3. So this is all for today. We are going to meet in the next class, wherein I'm going to discuss the chapter Plant Kingdom. Thank you.